हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, यूनिट 4 आपका जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट 1, 2, 3 एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, LRS and correspondent banking in NRI banking. So these three units we already covered in our past 3 sessions, 4 sessions basically. Okay. So today we are going to talk about documentary letter of credit. So first, let's have a look about the course content with like the subtopics and others. तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, पार्ट ए। 2B is operation of letter of credit, uniform custom and practice for documentary letter of credit, UCP 600. इसके अलावा liabilities, responsibility and right of parties. Then we have document under LC scrutiny. Then we have crystallization, follow up for bill under LC and safeguard for banks. Risk related to LC. Then we have standby LC, uniform rule for bank to bank reimbursement, international standard banking practices. Then last one we have Incoterms, that is known as international commercial terms, right? Like then finally we have case studies. So for case studies we will have separate sessions. Okay, so this is your course content in your unit 4 module A BFM. So now we will discuss these particular one by one. So first of all about the basic introduction of LC, letter of credit. So जैसे अगर हम लोग बात करते हैं banking book का the banking activities. So risk wise we have 3 books. One is banking book which deal with the deposit and advances. Second one is trading book which deal with the tradable securities, and third one is off balance sheet exposure, and LC is part of off balance sheet exposure where bank is generally providing guarantee on behalf of importers. अगर हम लोग LC डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, सो एप्लीकेंट फॉर LC डॉक्यूमेंट इज मोस्ट ऑफ टाइम और मोस्टली इट इज इम्पोर्टर्स। ओके, सो जो भी इम्पोर्टर्स आपके हैं वो आपका अपने बैंक के थ्रू बेसिकली LC जारी करवाते हैं फॉर एनी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट। तो वहाँ मोस्टली आपका इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच जनरली गारंटीज टू द सेलर कि दे विल रिसीव देयर पेमेंट ऑन टाइमली बेसिस और फुल अमाउंट। ठीक है, सो स्टैंड बाय LC आपका जो कहीं ना कहीं बैक करता है LC डॉक्यूमेंट को, एंड जो कहीं ना कहीं आपका जिसके थ्रू बैंक एज अ गारंटर आपका यहाँ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट वी हैव बायर and we have seller. There is an agreement, buy sale agreements between these two parties. ठीक है, तो जहाँ पे buyer is agreeing to buy some commodities for a defined price or for a fixed time duration, and seller is agreeing to sell that particular one on so we have a sale agreement between these two parties. ठीक है, तो इनके बीच में आपका एक सेल एग्रीमेंट आपका हुआ। ठीक है, इनवॉइस आपका जनरेट हुआ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वन बायर। अब जैसे सपोज दैट बायर इज फ्रॉम इंडिया एंड सेलर इज फ्रॉम यूएस। ठीक है, सो बायर विल कनेक्ट टू योर बैंक एज विच इज नोन एज इशूइंग बैंक। ठीक है, सो बायर इज एप्लीकेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, एलसी के केस में आपका बायर क्या होगा, एप्लीकेंट होगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर होंगी। ठीक है, सो उसने आपके बैंक को अप्रोच किया टू इशू LC regarding this particular trade which is based on this particular document, जो sales invoice है उनके basis पे। ठीक है, then buyer bank will approach to their correspondent bank which is known as advising bank and confirming bank which is also known as nominated bank by the seller। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा ऐसे चलता है कि लाइक जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है इसके बेसिस पे आपका सारी चीजें होंगी। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज रेडी होगा, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट आपका रेडी होगा। उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे आपका आगे की सारी चीजें आपका जो डिजाइन की जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही सेलर आपका ये चीजें शिपमेंट कर देगा तो उसके बाद आपका पेमेंट इनिशिएट होगा जिसमें स्विफ्ट की मैसेजिंग आपके लिए रहेंगी। ठीक है, और आपका जो सेलर का आपका एडवाइजिंग बैंक या जो नॉमिनेटेड बैंक है, सो
they'll do the documentation part. They'll submit documents to the issuing bank, and then issuing bank will make payments. तो इसमें अराउंड आपका, अगर आप स्विफ्ट मैसेजिंग को इंक्लूड करते हैं, सो देर आर अराउंड 13 स्टेप इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. उनको भी हम लोग यहाँ पे आपका समझते हैं. तो पहले आपका बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं अबाउट दी एलसी. So, a letter of credit is a document sent from a bank or financial institute that guarantees that a seller will receive a buyer's payments on time and for the full amount. Letter of credit are often used within the international trade industries. ठीक है, जो importer exporters हैं, they generally use this particular. अब जैसे कुछ स्टेप आपका यहाँ पे एक और चार्ट आपका, ठीक है. So buyer and seller जिनके बीच में आपका there is a sale agreement. So on the basis of this, buyer will apply for the file an applicant to the issuing bank. ठीक है, कि आप मेरे behalf पे क्या करें, ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आपका इश्यू करें. ठीक है. सो देन थ्रू द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंकिंग विच इज एडवाइजिंग बैंक, they'll connect to their nominated bank. Most of time they are advising in nominated banks are same. ठीक है. So जैसे ही आपका ये एक्सपोर्टर सामान भेज देगा, then they'll start for the payments आपका. ठीक है. तो यहाँ पे स्टेप्स आपके क्लियरली मेंशन है, तो जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं. पहला, there is a sale agreement first. ठीक है. second one is buyer apply for LC. Third one is issue LC to advising bank, and fourth one is advise LC to seller. Fifth one is present required documents to advising or nominated bank. Then sixth one is nominated bank present document to issuing bank after the shipment is done. Then seventh one is if document comply, issuing bank make a agreement to pay, तो वो आपका उसको पेमेंट कर देगा. So this is the process, एक बेसिक प्रोसेस. अब इसमें स्विफ्ट की मैसेजिंग आ जाती है, तो उससे थोड़ा सा ये जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो और आगे इंक्रीज होंगे. तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे. सो LC is a document that guarantees the buyer payment to seller. It issued by a bank and ensure timely and full payments to the seller. If the buyer is unable to make such payments, the bank cover the full or the remaining amount on behalf of the buyers. ठीक है. तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका कि लाइक दिस डॉक्यूमेंट, अगर आपका जो सेलर है, अगर वो जो सेल एग्रीमेंट्स के अंदर जो सारी चीजें उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, सो बैंक इज गिविंग दैट गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बायर्स कि अगर बायर नहीं भी करेगा, सो वी विल मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट. सो दैट इज जनरली नोन एज अ फाइनेंशियल गारंटी. बट देर आर सम कंट्रीज जहां पे फाइनेंशियल गारंटी वर्ड आपका इस्तेमाल करना मना है, लाइक यूएस, यूके. तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आपका स्टैंड बाय गारंटी. राइट. सो दिस इज द चार्ट. आई होप अगर आप लोगों ने मैकमिलन का बुक खोला होगा तो वहां पे आपने ये चार्ट देखा होगा. सेम थिंग इंक्लूडिंग स्विफ्ट मैसेजेस. ठीक है. तो आप कैसे ये काम करता है, एक बार दोबारा से आपका इस जर्नी को देखते हैं. ठीक है. सो देयर इज एन ऑर्डर. ठीक है. आपका सबसे पहले बायर और सेलर के बीच में, ठीक है, इंपोर्टर इज फ्रॉम इंडिया एंड बेनिफिशियरी विच इज फ्रॉम यूएस. ठीक है. सो ऑर्डर कंफर्म्ड आपका. ठीक है. सेकंड स्टेप. थर्ड वन इज जैसे बायर और सेलर के बीच में देयर इज अ सेल एग्रीमेंट. ठीक है, इस तरीके से. देन एप्लीकेशन फॉर एलसी. ठीक है. सो आप जो बायर है आपका, इंपोर्टर है, वो किसी भी आपका जो बैंक इंस्टीट्यूट है उनसे आपका दे विल अप्लाई फॉर द एलसी. ठीक है. फोर्थ वन इज एलसी ट्रांसमिशन थ्रू स्विफ्ट कोड MT70. ठीक है. फिफ्थ वन इज एलसी एडवाइजिंग. ठीक है, कौन जो भी एडवाइजिंग बैंक आपका होगा. ठीक है. सिक्स्थ ए इज एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज. सिक्स्थ बी इज गुड्स आर शिप्ड. ठीक है. सेवंथ इज प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर स्क्रूटनी. ठीक है. देन वी हैव एट्थ वन. ठीक है. एट्थ वन इज सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर स्क्रूटनी. ठीक है. स्क्रूटनी मीन्स उनकी जांच पड़ताल होने के बाद. ठीक है. नाइन्थ इज, इफ यू टॉक अबाउट नाइन, डिलीवर डॉक्यूमेंट्स इन कंप्लायंस ऑफ एलसी. एंड टेंथ वन इज copies of documents. We missed this eighth one. ठीक है. Eighth one we have to this. ठीक है. Tenth one is payment made at straight or on due date. ठीक है, जिसमें आपका स्विफ्ट मैसेजिंग यूज होगा MT202. These are the स्विफ्ट कोड. ठीक है. अब ये पेमेंट मेड एट साइट. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीज, जिसमें दो आपको मिलेंगे. एक आपका होता है साइट, मीन्स एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर हो जाएंगे,
सेम टाइम आपका पेमेंट, ठीक है। सो डिमांड बिल की तरह जो काम करते हैं। अनदर वन इज काइंड ऑफ वेयर वी हैव अ स्पेसिफिक ड्यू डेट, लाइक आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, उस तरीके से जो आपके यहाँ पे रहेंगे। 11th आपका क्रेडिट एडवाइस, 12th वन इज good taken delivery, and 12th copies of documents along with BOE details, and I guess 12th one only, okay। हाँ, तो ये आपके 12 आपका जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व रहते हैं किस केस में, आपका जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज आपका ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जिसमें आपका आईडीएम, इंडियन कस्टम आईडीएमएस, ठीक है, आपका इंपोर्ट एक पोर्टल आपका होता है बेसिकली, जिसमें कहीं ना कहीं सारी इंफॉर्मेशन आपका अपलोड की जाती है व्हेन विल कम टू द एक्सपोर्टर इंपोर्टर फैसिलिटीज इन इंडिया। सो आईडीएमएस एंड ईडीपीएमएस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका 2014 के अंदर आरबीआई के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कस्टम दे हैव टू अपलोड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ओवरसीज कस्टम, एलसी एडवाइजिंग बैंक इन यूएसए या अदर्स, आपका ये जो सारे एरियाज जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस जो एलसी के अंदर आपका रहता है, ठीक है। पार्टीज की अगर हम लोग बात करें, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा एडवाइजिंग बैंक, नोमिनेटेड बैंक, एप्लीकेंट, आपका इशूइंग बैंक। तो ये होते क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बहुत आसान है वैसे। जैसे आपका एप्लीकेंट इंपोर्टर आपका, ठीक है, इशूइंग बैंक हु इशू द एलसी ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर्स, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक which is the correspondent bank most of time from the foreign country, ठीक है, from the exporters country। nominated bank which is nominated by the exporter। तो इस तरीके से आपको ये लिंक देखने के लिए मिलेगा। so the buyer and importer of the or the applicant on whose behalf LC is open, seller or exporter beneficiary of LC, opening bank, buyer's bank who establish or issue the LC, advising bank, bank in seller's exporter's country who act as an agent of issuing bank and authenticate and advise the LC, which is mostly part of correspondent banking, ठीक है। जैसे एसबीआई आपका सपोज दैट इंपोर्टर्स बैंक है, एसबीआई का जो correspondent बैंक है यूएस के अंदर, सो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन। confirming bank or nominated bank who undertake to pay on behalf of issuing bank, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये पार्टीज जो एलसी के अंदर आपका इन्वॉल्व होते हैं, जो बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ विल कम टू द टाइप्स ऑफ एलसी। यहाँ पे ना कुछ एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन टाइप्स के ऊपर वो कई बार क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट ओरिएंटेड देता है, यूसीपी 600 गाइडलाइंस या अदर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर यूनिट से आपको सीखने के लिए मिलेंगी, जो एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर साल आपको इस एलसी के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सो अगर हम लोग बात करें टाइप्स का, सो वी हैव सो मेनी टाइप्स। जैसे डॉक्यूमेंट्री एलसी, मतलब विच इज सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपका क्लीन एलसी, जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंफर्म्ड एलसी, दे आर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अनकन्फर्म्ड, दे आर रिवोकेबल्स, जहां पे कंडीशंस को चेंज किया जा सकता है। फिक्स एलसी सेम, रिवॉल्विंग सेम, ठीक है। मतलब ये आपका कंफर्म इन दिस, और रिवोकेबल और इररिवोकेबल, ठीक है। रिवोकेबल और इररिवोकेबल, मार्जिनल, एंटीसिपेटरी एंड दिस, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है साइड क्रेडिट, ठीक है। साइड क्रेडिट जनरली क्या होता है, ऑन डिमांड, कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे एट द टाइम ऑफ बिल ऑफ लेटिंग, सो पार्टी और दैट इशूइंग बैंक दे हैव टू इनिशिएट द पेमेंट आल्सो, ठीक है। अदर्स केसेस में क्या होगा, आपका क्रेडिट बिल्स के अंदर क्या होगा, सो इट इज फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। लाइक लेट्स से 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज का टाइम वहां पे रहता है, ठीक है। सो अंडर दिस एलसी, डॉक्यूमेंट आर पेबल एट अ साइट upon presentation of the correct documents. For example, a businessman can present a bill of exchange to a lender along with a side letter of credit and take the necessary funds right away. A side letter of credit is more immediate than the form of लेटर ऑफ क्रेडिट आपका, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जनरली साइड लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, कि जैसे शिपमेंट्स हो रही हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स पास ऑन हो रहे हैं तो सेम टाइम आपका पेमेंट्स को भी इनिशिएट किया जा रहा है। दूसरा एप्लीकेशन क्रेडिट और टाइम क्रेडिट विच इज ऑल्सो नोन एज उसेंस बिल, ठीक है। उसेंस बिल के नाम से इसको हम लोग जाते हैं, जहां पे एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो लाइक जैसे जो पेमेंट्स के मेथड्स हैं, सो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अ मीडियम ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ उसेंस बिल, जहां पे
30 डेज, 45 डेज या 60 डेज, जो भी एग्रीड टाइम ड्यूरेशन है उसमें वो पेमेंट आपकी होगी. सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन and payable after a period are called Usens bill. Under acceptance credit, these Usens bill are accepted upon presentation and eventually honored on their respective due date. आपका ठीक है, जैसे bill of exchange में होता है ना, I order to pay you और I order to pay me or my order worth rupees 10 lakh for value received. So after 30 days. तो this is the case of bill of Usens. Demand के अंदर क्या हो रहा है आपका ऑन द स्पेसिफिक डेट आपका, ठीक है. तो इस तरीके से दो रहेंगे. रिवोकेबल आपका, रिवोकेबल और इररिवोकेबल. आज के डेट में जनरली आपका इररिवोकेबल्स एलसी चलते हैं, ठीक है. सो रिवोकेबल इज जहां पे कंडीशंस कैन बी मोडिफाइड. ओके, सो अ रिवोकेबल एलसी इज अ क्रेडिट दैट द टर्म एंड कंडीशन ऑन ऑफ व्हिच कैन बी amended or cancelled by the issuing bank. This cancellation can be done without prior notice to the beneficiaries. तो इसीलिए इसको आपका हटा भी दिया गया. Irrevocable credit is a credit the term and conditions of which can neither be amended or nor cancelled. Hence, the opening bank is bound by the commitments given in the LC, और जिसको हम लोग स्टैंड बाय LC के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन आपका कंफर्म क्रेडिट इज इररिवोकेबल आपका. सो only irrevocable LC can be confirmed. A confirmed LC is one when a banker other than the issuing bank adds its own confirmation to the credit. In case of confirmed LC, the beneficiary's bank would submit the documents to the confirming bankers. Back to back credit. बैक टू बैक क्रेडिट इज, ये भी बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है. इट इज अ केस जैसे देयर इज अ एक्सपोर्टर फ्रॉम यूएस, ठीक है, उसको अपना सामान इंडिया में बेचना था, ठीक है. उसने कोई इंडियन इंपोर्टर को पकड़ा और उसने इंडियन इंपोर्टर को फाइनेंस कराया, ठीक है. उसने आपका एलसी जारी करवाया, आपका जैसे इंडियन एक्सपोर्टर को फाइनेंस कराने का एक रूट उसने बनाया, ठीक है. सो दे आर आस्किंग, जैसे उसने आपका एलसी के अंदर उसको डाला एंड उसके थ्रू आपका पेमेंट्स करवाया, ठीक है. सो बैक टू बैक क्रेडिट इज द एक्सपोर्टर्स द बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट his banker to issue an LC in favor of his supplier to procure raw material goods on the basis of the export LC received by him. This type of LC is known as back to back LC. ठीक है, तो एक्सपोर्टर उसने अपने बैंक से एलसी इशू करवाया किसको, आपका जो बायर्स है आपका उसके लिए, ठीक है. तो इस तरीके से जो आपके काम करते हैं, ठीक है. ट्रांसफरेबल विच कैन बी ट्रांसफर टू थर्ड पार्टीज, ठीक है. जैसे होता है ना आपका एंडोर्समेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है. सो व्हाइल एन एलसी इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखें आपका बिल्कुल, ठीक है. सो एलसी इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अंडर इट्स आर नेगोशिएबल, ठीक है. जो डॉक्यूमेंट एलसी है दैट इज नॉट नेगोशिएबल, बट हाँ जब पेमेंट्स का लिए जो आपका बिल है दैट कैन बी नेगोशिएबल और इट कैन बी एंडोर्स टू सम अदर पार्टी. अ ट्रांसफरेबल क्रेडिट इज one in which a beneficiary can transfer his right to a third party. Such LC should clearly indicate that it is a transferable LC आपका. तो ये LC के अंदर clearly आपका mention होना चाहिए. तो ये कुछ आपका different type of LCs. अब आज की मतलब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू होने वाला है दैट इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है. सो यूसीपी गाइडलाइंस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. सो राइट नाउ इट इज यूसीपी 600 अभी जो आपका चल रहा है, ठीक है. सो द यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, दीज गाइडलाइंस आर इश्यूड बाय किसके द्वारा इश्यू किए गए, आपका आईसीसी के द्वारा, ठीक है. सो आईसीसी आपका जैसे इन्होंने 1933-34 में फर्स्ट टाइम आपका यूसीपी गाइडलाइंस को इश्यू किया. इन गाइडलाइंस को जारी करने का जो मोटिव है कि जितने भी कंट्रीज आपका मतलब बेसिकली आपका जो इंटरनेशनल पेमेंट या जो एलसी जैसे डॉक्यूमेंट्स जब आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मूव करते हैं या पेमेंट ऑब्लिगेशंस आपके सेट करते हैं, तो उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हो उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आईसीसी आपका दैट इज नोन एज मतलब आईसीसी आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसने ये गाइडलाइंस आपके बनाई. एज पर यूसीपी 600 वी हैव 39 आर्टिकल्स. इसमें आपका 39 आर्टिकल्स हैं जिसमें आपका एलसी की पूरी जर्नी आपका डिफाइन की गई, ठीक है. मतलब उस एलसी का डेफिनेशन क्या होगा,
डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगे, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, सारी चीजें आपका जो यहाँ पे डिफाइन किए गए। एंड दीज आर वॉल्यूंटरी इन नेचर बेसिकली, एंड दे बिकम लीगल वंस दे आर पार्ट ऑफ देयर सेलिंग एग्रीमेंट। जैसे बाय सेल आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो वहां पे दे विल गिव अ रेफरेंस टू यूसीपी 600, देन यूसीपी विल बिकम लीगल इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यूसीपी 600 आपका जो अभी लेटेस्ट है, बट इससे पहले दिस इज द 6th एडिशन ऑफ यूसीपीस, ठीक है, जो 2007 आपका जुलाई 2007 से इंप्लीमेंट हुआ था। इससे पहले आपका 5 और एडिशंस हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट। The uniform custom and practices for documentary credit are international rule published by ICC with the aim of standardizing international banking practices in relation to letter of credit or LC आपका, ठीक है। So many bank and lenders are subject to this regulation which aim to standardize international trade, reduce risk in risk of trading goods and services and govern trade आपका, ठीक है। तो बेसिकली देखो हर कंट्री के जो पेमेंट के टर्म एंड कंडीशंस आपकी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनको कहने के उनमें एक हार्मोनी सेट करने के लिए, उनको आपका एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये प्रयास आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड आईसीसी, जिसके द्वारा आपका किया गया, ठीक है। सो द फर्स्ट यूसीपी वाज created in 1933 and has been revised by ICC up to the point of UCP 600। अभी आपका UCP 600 चला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए UCP 600 ही, बट उससे पहले का भी हिस्ट्री जानना जरूरी है और आपके एग्जामिनेशंस का भी पॉइंट है, ठीक है। सो वेयर first framed by ICC in 1933. Since then, these rules have been revised 6 times, and the 6th one is UCP 600. Okay, so we have 1951. Apart from this 1933, then it get revised in 1951, 1962, 1984, 1994, and in 2007, which is known as UCP 600. So UCP 600 which become effective from 1st July 2007, and it is the latest and 6th revision of this ICC's UCP 600, right? So सबसे पहले आपका UCP 82 आपका it was the first one, ठीक है, 1933. So the first document issued under the UCP based on the credit documents circulation in 1929 contained the following provisions. Responsibility of bank to examine responsibility of bank to examine all documents and papers with cares so as to ascertain that their face they appear to be in order. The word honor and the detailed requirement of transport and insurance documents were introduced during this particular period. Then when a documentary letter credit require presentation of other documents without further definition, bank will accept such document as tendered without any responsibility of their part. The stipulation that when the expiry date of the documents credit fall on Sunday or a legal holiday or a local holiday, the period of validity will be extended to the next फॉलोइंग बिजनेस डे, ठीक है। जैसे 15 अगस्त को आपका होता है तो 16 अगस्त को। दिस इज अगेन टुडे आल्सो पार्ट ऑफ दिस यूसीपी 600। ये यूसीपी 600 का भी पार्ट है, ठीक है, अभी तक अगर हम बात करते हैं। फर्स्ट अमेंड सेकेंड अमेंडमेंट आपका सॉरी यूसीपी आपका जैसे 1951, ठीक है। सो यूसीपी 151 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 151। दिस वाज द फर्स्ट रिवीजन ऑफ यूसीपी रूल्स वेयरइन द यूज ऑफ the term applicants, ठीक है, आपका applicants who is आपका जो इश्यू के लिए मतलब इम्पोर्टर आपका, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग आपका प्रिंसिपल के नाम से जानते थे, नाउ इट इज नोन एज एप्लीकेंट। आज भी हम इसको एप्लीकेंट के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो दिस चेंज वाज मेड ड्यूरिंग द 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट्स इन यूसीपी गाइडलाइंस was used, and the method of settlement, payment, acceptance, negotiation and purchase were introduced during this particular period. The very important concept in documentary credit operation, all the parties deal in documents and not in goods, and
the bank must determine compliance on the basis of documents alone. ठीक है, it was highlighted. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी दो उनके बीच में अगर आपका ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, सो जो भी बैंक और फाइनेंशियल पार्टीज आपका इन्वॉल्व है, दे कंसीडर एलसी ओनली. ठीक है, उनको गुड्स या उनसे आपका मतलब नहीं है. ठीक है, यहाँ पे जो प्रोमिसेस इन एवरीथिंग दैट इज या लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट्स. दैट मीन्स जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो एलसी में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस आपका नहीं हो सकता. ठीक है, इस तरीके से जो वेट है आपका दैट इज एज पर द डॉक्यूमेंट्स नॉट एज पर द गुड्स. तो इस तरीके से आपका चीजें या हर चीज का मीडियम आपका एलसी विल बी, एलसी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं या उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे आपका बढ़ाएगा. ठीक है, प्रोविजन विद रिगार्डिंग द इशूइंग बैंक हैड reasonable time to examine the documents and the stipulation that description of goods on the commercial invoice must correspondent with the description in the credit और LC आपका. ठीक है, was also highlighted. तो यहाँ पे भी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी आपका जो डिस्क्रिप्शन है आपका LC के अंदर दैट विल बी रेफर्ड. ठीक है, उसको हम रेफर करेंगे फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, तो उसी को हम लोग आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वरीयता देंगे. इसके अलावा द इशूइंग बैंक हैड रीजनेबल टाइम टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स. उस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसकी एग्जामिनेशंस के लिए दे हैव अ सर्टेन और फिक्स टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, दे विल गेट अ स्पेशल और फिक्स टाइम ड्यूरेशन. यूसीपी 222 in 1962 the UK and Commonwealth Bank adopted the UCP DC for the first time, including the provision that the documentary credit is binding on all parties, a rule that a credit is separate from the sale uh, or other contract on which it may be based, and that the confirming bank negotiate without recourse, where the confirming bank negotiate without recourse were introduced. Confirming bank negotiate without recourse मतलब आपका एक होता है विद रिकोर्स, एक विदाउट रिकोर्स. मतलब इट इज अ काइंड ऑफ कि इसके लिए आपको कोई ऐसा गारंटी या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. एलसी के ऊपर आपको किसी एडिशनल गारंटी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी. The detail of how to handle the documents of the second beneficiary if first beneficiary failed to substitute its own documents was introduced. ठीक है, अगर first beneficiary आपका लूज करता है तो second beneficiary को कैसे मिलेंगे उसके डॉक्यूमेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया. यूसीपी 290 in 1974, introduction of term nomination and its use. तो यहाँ पे आपका nomination को यूज किया गया. The addition of detail regarding inconsistency between documents, a new article covering combined transport, assignment of proceeds, and the default period for presentation within 21 days after the date of issuance of bill of lading or other transport documents. ठीक है, तो ये जो नई चीजें आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस है. अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, so I'm not saying you have to remember all these आपका UCP 1 2 3 4 5 तक आपको टेंशन नहीं लेना. ठीक है, जस्ट डू द रिविजन थिंग्स, कोर्स कंटेंट का पार्ट है. लेकिन UCP 600 इज मस्ट. ठीक है, वहां पे जो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे यू कैन नॉट इग्नोर देम. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. UCP 400 आपका 1983. This revision resulted in restructuring of the entire text and brought out a layout of the UCP as is prevalent today's, and some of the important provision were. तो जो अभी UCP का आपका जो LC डॉक्यूमेंट्स का आपका लेआउट है that get introduced in मतलब जो अभी हमारे यहाँ चलता है वो आपका UCP 400 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो चुका था. ठीक है, so the requirement that the advising bank is to take reasonable care to check the ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक जो भी होगा दैट मीन्स विच इज करस्पॉन्डेंट बैंक फॉर द इशूइंग बैंक. ठीक है, जैसे इंडिया का SBI था, ABC फ्रॉम US दैट वाज एडवाइजिंग बैंक. ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दे विल चेक द क्रेडिट विद SBI कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं है. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया क्योंकि जो सेलर है दैट बिलोंग्स टू द एडवाइजिंग कंट्री. राइट,
और जो आपका नॉमिनेटेड बैंक होगा वो भी उसके ऊपर रिलाई करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग एज अ सेटलमेंट मीन्स, तो डेफर्ड पेमेंट्स अंडरटेकिंग्स को आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। सेपरेट आर्टिकल कवरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ transshipment was get introduced during this particular period, and these all are part of today's UCP 600 also. ठीक है, UCP 500 the last one, ठीक है, 1993. So this revision is the first UCP that many of the documentary credit practitioners across the globe have experienced, and the revision consists of many changes, जैसे credit is irrevocable if द डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट इज साइलेंट ऑन द इशू। ठीक है, तो अगर मतलब वहां पे मेंशन नहीं है तो इट इज नोन एज इर्रिवोकेबल। ठीक है, रीजनेबल टाइम नॉट exceed 7 banking days following the date of presentation of documents. Earlier it was 21 days, in which to determine compliance or non-compliance. Indication of who can sign transport documents and रीडिफाइनिंग ऑफ वर्ड ट्रांसशिपमेंट। तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट्स जो आपका वर्ड है उसको दोबारा से रीडिफाइन किया गया। नाउ वी कम टू UCP 600, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टोटल 39 आर्टिकल्स एंड आई विल शो यू द क्लबिंग ऑफ ऑल दोस 39 आर्टिकल्स आल्सो। ठीक है, सो UCP 600 आपका जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस आपके हैं। ठीक है, सो ICC पेरिस अपॉइंट इन 2000 आपका ICC Paris appoint a task force after approval of the Banking Commission in 2003 to undertake revision of the UCP 500. The task force, after working for over 3 years, presented a draft of the new UCP. The drafting group constituted members from 9 countries which had 15 meetings before the draft were finalized. देखो बैकग्राउंड आपका UCP 600 के लिए। A consultative group comprising 41 members from 26 countries was formed to discuss the draft. The draft was also referred to national committees, including ICC India. So ICC India, and key issues were identified, taking into account various ICC opinions. Doc decks is documentary credit dispute resolution expertise, decisions, papers, court and decisions. ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन्होंने क्या किया, they sent that particular draft to 41 members of 26 countries. जैसे ICC इंडिया को भी वो आपका आया, हर जगह के कंट्रीज ने उसको आपका डिस्कस किया, आपके उसमें जो भी हाईलाइटेड या चैलेंजेस आपके आते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, सो इसके बाद आपका डॉकडेक्स इज वन ऑफ द ओपिनियन options available to the parties, the LC resolved letter of credit dispute. Its full form is ICC Documentary Credit Dispute Resolution Expertise. After extensive working discussion, deliberation on various articles, practices and need to simplify the article, the ICC Banking Commission approved the draft of UCP 600 in its meeting 25th of October 2006, bringing the new UCP which become effective from 1st of July 2007 आपका। ठीक है, जो प्रेजेंट गाइडलाइंस आपकी हैं, तो इसमें आपका UCP 600 represent the latest and current revision of UCP aligned with ISP 98, which cover new article covering definition and interpretations. डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशंस आपका यहाँ पे लाया गया जो कि आपके आर्टिकल 1 एंड 2 में ही आपके हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ द रिवोकेबल क्रेडिट, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, अब रिवोकेबल क्रेडिट नहीं चलता, देयर आर एलसी इज ऑलवेज इररिवोकेबल क्रेडिट। ठीक है, सो न्यू सब आर्टिकल कवरिंग डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका लॉस्ट हो जाते हैं तो उनके लिए एक सब आर्टिकल आपका ऐड किया गया। ठीक है, setting of maximum examination period as 5 banking days follows the days of presentation. पहले कितना था 21 से 7 से इसको कहां पे लाया गया 5 में आपका जो एट प्रेजेंट है। The stipulation that documents are to prepare to fulfill their function where the credit is silent with regard to data content, possibilities for handling discrepant documents.
सो ये सारे जो नई नई चीजें आपका जो यहाँ पे यूसीपी 600 के अंदर आपका इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। सो इन द आर्टिकल ऑफ यूसीपी 600 कैन बी ग्रुप, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 39 आर्टिकल्स, तो उनका ग्रुपिंग, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू रिमेंबर ऑल द आर्टिकल्स यहाँ, बट आपके बुक के अंदर इनकी जो ग्रुपिंग है वो आपका करके दी गई, जैसे 1 to 5 में क्या क्या चीजें आती हैं या फिर अदर्स आपका, ठीक है। सो जैसे सॉरी देयर इज समथिंग मिसिंग, यस। सो आर्टिकल 1 to 5 डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, 1 से 5 के बीच में इनको डिफाइन किया गया। 6 to 10 अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट, प्लेस, obligation of issuing and confirming bank, advising credit and amendments, 6 to 10. 11 to 17 pre-advised credit, nominated bank, reimbursement arrangement, complying presentation, original documents, etc. Article 18 commercial invoice, ठीक है। so article 18 which is related to commercial invoice, ये जो इंडिविजुअली और 2-3 वाले हैं, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। Article 19 to 27 transport documents, 28 insurance document, 29 to 33 extension, tolerance and partial and installment drawing and hours of presentation. Article 34 to 37 disclaimers, 38 and 39 transferability and assignment of proceed. So these are the 39 articles under UCP 600, ठीक है। तो ये 39 आर्टिकल्स के उसमें कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया आपका कि जो एलसी की आपका जो जर्नी होगी फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, आपका स्टार्ट टू एंड आपका, ठीक है। जैसे अगर कोई ओपनिंग बैंक होगा, सो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैंक, इफ देयर इज सम एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो ये, और आपका इंश्योरेंस, बिल ऑफ लेडिंग, एवरीथिंग इज डिफाइंड अंडर दीज 39 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सबके लिए, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस वन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्टीज के ऊपर, ठीक है। लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट ऑफ द पार्टीज। एक चीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे अगर आपका जो एक्सपोर्टर बैंक है या एक्सपोर्टर कंट्री, उसकी वजह से कुछ आपका प्रॉब्लम्स होता है, या अगर कोई भी, एवरीथिंग इज फाइन बट कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका एलसी के दौरान नुकसान हो रहा है, तो हु विल बियर दैट पर्टिकुलर लॉस, तो आपका आंसर होगा एप्लीकेंट, ठीक है। इवेंचुअली अगर कुछ भी ऐसा होता है, एप्लीकेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन, एप्लीकेंट मींस इंपोर्टर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन गाइस। ठीक है, सो सबसे पहले एप्लीकेंट की ही बात करते हैं। द एप्लीकेंट ऑफ एलसी must give complete and precise instruction for issuance of letter of credit and any amendment thereof. The LC must not include excessive detail or give any reference of credit previously issued to avoid any confusion or misunderstanding, which is defined under Article 5. The applicant should indemnify banks against any obligation imposed by फॉरेन लॉस, आर्टिकल 18 आपका, ठीक है, जैसे अभी हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे थे। इशूइंग बैंक इज द पार्टी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट्स and should therefore ensure itself about the credit worthiness of the applicant. जब आप उसके बिहाफ में LC जारी कर रहे हो, so you have to make sure about the credit worthiness of the applicant. The issuing bank give a definite undertaking to make payments in case of sight and accept and pay on maturity in case of acceptance or deferred payment, to authorize bank to negotiate and reimburse the negotiating bank provided the stipulated documents are presented under LC 2 and 9. Advising bank has option to choose as whether it wish to advise एलसी और नॉट, ठीक है। अब एडवाइजिंग बैंक, जैसे एसबीआई ने एबीसी को अपना एडवाइजिंग बैंक बनाया, ठीक है, तो दे डू हैव दैट ऑप्शन, बट हाँ, उनको अगर वो नहीं एडवाइज करना चाहते हैं, दे हैव टू क्लियर दिस पर्टिकुलर। इफ इट एग्रीज टू एडवाइज द एलसी, देन इट मस्ट do so by taking reasonable care in checking the authenticity of the credit with the
with their जो भी आपका partner bank है from the importer's country. In case it decide not to advise a LC, then it must inform the issuing bank immediately if the advising bank is unable to establish the authenticity of LC. Right? Next one. So documents आपका, जैसे अगर हम लोग बात करें documents अंदर आपका LC, scrutiny, crystallization, follow up for bill under LC, safeguard for banks, जिसमें bill of lading, insurance and others, so they are generally part of this one. ठीक है. So again बहुत सारी चीजें. अब payments के लिए भी generally use bill of exchange. ठीक है. So bill of exchange it is a creditor documents. ठीक है. बिल ऑफ एक्सचेंज कौन इशू करता है? क्रेडिटर इशू करता है. आई ऑर्डर टू पे यू और आई ऑर्डर टू पे मी और माई ऑर्डर लाइक जैसे 2 months लेटर आई ऑर्डर टू पे यू पे मी और माई ऑर्डर वर्थ ₹10 crores फॉर वैल्यू रिसिप्ट, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो बिल ऑफ एक्सचेंज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इट ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी. ठीक है. मतलब बेनिफिशियरी मीन्स क्रेडिटर्स ऑन एलसी इशूइंग बैंक. It envisages the issuing bank to make the payments immediately if it is drawn on site or accept and pay on due date. ठीक है. तो जैसे who will issue this particular one? जो आपका सेलर्स का बैंक है. सेलर्स का बैंक कौन? बायर्स बैंक. ठीक है. तो यहाँ पे बैंक टू बैंक आपका डीलिंग होगा, कस्टमर्स के ऊपर जनरली नहीं जाएगा. It is drawn on acceptance basis. It should be in normal due course satisfy the following requirements. It should be drawn by the beneficiary on the issuing bank. Please do remember this. कई बार ये पूछ लेता आपको. ठीक है. And payable at tenure mentioned in the LC. ठीक है. अगर वो उसेन से तो आपका immediate, और अगर आपका जैसे अगर वो डिमांड है तो आपका इमीडिएट, और उसेन से तो जो भी स्पेसिफिक डेट उसमें मेंशन है, डेज आपका. इट शुड इंडिकेट द इशूइंग बैंक नेम एंड लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर along which it's along under which it drawn. It should, unless and otherwise specified, be drawn in the currency of letter of credit and should not exceed the amount of LC. ठीक है. तो LC की जो करेंसी है और एंड आपका जो अमाउंट है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है. LC की करेंसी में ही होगा और आपका बेसिकली जो अमाउंट है LC के अंदर, जो उनका सेल का अमाउंट है उसको एक्सीड नहीं करेगा. एनी करेक्शन शुड बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड. कोई भी करेक्शन है तो आपका टाइमली बेसिस पे चेंज हो. इनवॉइस इज बेसिकली इट इज अ सेल एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर. ठीक है. जिसके बेसिस पे मतलब आपका ओपनिंग बैंक विल यूज दिस पर्टिकुलर वन, और वी कैन से बायर विल प्रेजेंट इनवॉइस टू ओपनिंग बैंक. ठीक है. क्योंकि मेरे को इसके बेसिस पे आपको ये चीज करवानी है. ठीक है. So an invoice is a commercial documents and is a basic necessity of trade documents. It is prepared by the beneficiary giving details of good, quantity, value in unit terms, weight and total value of good. Following are the specification about the invoice. It should be made out by the seller or beneficiary as stipulated in LC. It should, unless and otherwise specified in letter of credit, be made out in the name of applicant or opener of the LC. Description of good must corresponded which description of good given in the LC. ठीक है. जो मतलब LC के अंदर जो आपका है और आपका जो इनवॉइस, दोनों के अंदर करेक्ट मैच होना चाहिए. ठीक है. इनवॉइस मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, contract number and performa invoice number and number of LC along with the issuing bank name. The invoice value should not or invariably exceed the LC value. If invoice is issued for an amount in excess of the amount permitted by credit when not specifically prohibited by term of LC, as per Article 18B of UCP DC, the drawing should not exceed the amount mentioned in the LC. ठीक है. देखो यहाँ पे आपको जैसे इनवॉइस, सपोज दैट इनवॉइस वैल्यू इज $10 million. ठीक है. एंड आपका LC वैल्यू इज सपोज दैट $5 million. ठीक है. सो द अमाउंट विल विच इज पेबल विल बी दिस एज पर सेक्शन आपका 18B आपका, अगर ऐसा कुछ भी रहता है. ठीक है. अगला है बिल ऑफ लेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिल ऑफ लेटिंग अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एविडेंटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम
द पोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका जो जैसे जो डॉक ओनर्स आपके होते हैं उनके द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से मूव हुआ और कहाँ पे आपका वो डेस्टिनेशन। ठीक है, तो दो आपका ओरिजिनेशन एंड ओरिजिनेटिंग प्लेस एंड आपका डेस्टिनेशन। इट इज अ रिसिप्ट इशूड बाय शिप ओनर, जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया, शिप ओनर और its authorized agent, stating that the goods indicated therein, quantity, quality, descriptions, are shipped on specific date and through specific vessels and deliverable to the person mentioned therein as the consignee or to his order after payment of all dues टू दी शिपिंग कंपनी। ठीक है, तो जैसे उसके जो भी आपके शिपिंग कंपनीज के पेमेंट है वो अगर वो करेगा तो वो हम इस पर्सन को यहाँ पे इसको डिलीवर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, तो जो बड़े बड़े शिपमेंट्स आपके होते हैं वहां पे काफी ज्यादा यूज होता है। द बिल ऑफ लेडिंग शुड बी अ complete set of negotiable copies along with number non-negotiable copies as stipulated in LC। हर चीज आपका एलसी के बेसिस पर डिजाइन हो रही है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे। So it should bear the signature of ship owners or its authorized agent. The description of goods should correspondent with the requirement in terms of LC and mention in invoice. Bill of lading should bear the letter of credit number along with the name of the issuing bank आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारी सेम चीजें जो रहेंगी। Payment of freight should be clearly indicated in bill of lading as per the requirement of LC। ठीक है, तो जैसे आपका LC के उसमें डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होगा कि इतना आपका पेमेंट्स रहेगा इन अदर्स, so that should be clearly mentioned। The letter of credit should call shipped on board bill of lading and accordingly bill of lading should bear such clauses। It should be drawn to the order of shipper, bank endorse or in favor of the issuing bank as stipulated in LC। The date of shipment should be within the date of stipulated in the LC। ठीक है, partial shipment or transshipment if permitted in the letter of credit should be clearly indicated in the bill of lading also। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो गाइडलाइंस हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, और बहुत बार बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइसेस, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, द ग्रॉस वेट नेट वेट शुड बी इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। द बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट जनरली बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एलसी। ठीक है, तो पहले एलसी इशू हुआ देन आपका ये इशू हुआ। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड दिस द बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट बी क्लॉज अनलेस स्पेसिफाइड परमिटेड इन दी एलसी आपका। ठीक है, तो सारी जो एलसी की गाइडलाइंस है वो। अगला हमारे पास है इंश्योरेंस। ठीक है, सो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट्स, इट मस्ट बी इशूड एंड साइंड बाय द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी और देयर एजेंट, आर्टिकल 34 सबसेक्शन ए। इट शुड नॉट इशूड बाय द ब्रोकर। ठीक है, कोई ब्रोकर के द्वारा इशू ना हो। ठीक है, the date of issuance of insurance must be on or before the date of shipment। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड और it must be endorsed by the specific notions that the cover is effective from the date this date to this date। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक कवर होगा उसको। The currency of issuance must be same as the currency of LC। ठीक है, जिसमें आपका LC का पेमेंट होगा उसी में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट होगा। द पॉलिसी शुड क्लियरली इंडिकेट दी वो इज इट इज कवरिंग। ठीक है, जैसे आपका द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन एंड शुड ऑल्सो मेंशन द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। क्लेम शुड बी मेड पेबल इन कंट्री ऑफ एप्लीकेंट। तो ये जो क्लेम है आपका कहाँ पे पेबल होंगे, एप्लीकेंट के कंपनी में, क्योंकि वो इंपोर्टर आपका है, ही इज द परचेजिंग द गुड्स इन अदर्स। ठीक है, all original must comply with the documents। The description of good is in the insurance policy certificate should in the conformity of the LC itself। ठीक है, तो सारी चीजें अगेन आपका LC के ऊपर आएंगे। अब आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये कौन कहां से होगा आपका, किसकी कस्टम से, जो सेलर का कस्टम है वहां से। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो आपका सेलर आपका जब सामान को शिपमेंट करा है तो वहां का जो कस्टम है दे विल इशू दिस पर्टिकुलर। ठीक है, सो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ गुड्स। इट मस्ट बी इशूड एंड साइंड बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सच एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
informing origin of goods, value, invoice, number of bill of lading. Detail appearing in the certificate of origin must consistent with their with other documents. It must be ensured that origin of good is not from any war fighting country consisting of banned hazardous goods also. ठीक है, तो ऐसे कहीं बम बारूद आपका लेके चल रहे हैं. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, so the issuing bank on receipt of documents draw under the LC has obligations to pay immediately. If the document are drawn at sight or accept and agree to pay on due date, if the document are drawn on acceptance basis, provide the documents are drawn strictly as per the term and condition of LC. ठीक है, तो दो तरीके से आपका क्रिस्टलाइजेशन, वन इज ऑन साइट, दूसरा आपका जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट भी है, सो दे हैव टू लाइक जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आपका इश्यू हो गया इन अदर्स, सो दे कंफर्म द पेमेंट आल्सो. ठीक है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपका गारंटी दे रहा है किसको, आपका सेलर को. इफ यू विल फुलफिल दिस कॉन्ट्रैक्ट यू विल रिसीव पेमेंट्स, फुल पेमेंट्स. ठीक है, अब ये जो प्रॉमिस किया गया इसको गारंटी दे रहा है आपका स्टैंड बाय एलसी. ठीक है, तो मतलब इट्स अ गारंटी डॉक्यूमेंट्स. गारंटी वर्ड यूज नहीं करते कुछ कंट्रीज में, इसलिए इसको यूज करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन डोमिनेटेड बाय एलसी ट्रांजैक्शंस वेयर बाय द सेलर इज एश्योर्ड ऑफ पेमेंट बाय सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स in compliance and conformity with the term and condition of LC. Standby LC has often been used in situation where there is non-performance. ठीक है, अगर वो NPA होता है तो बैंक will make the problem. ठीक है, पेमेंट्स आपका. ठीक है, सो स्टैंड बाय एलसी का रूल क्या है, मतलब एक नॉर्मल मतलब एलसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज है कि अगर मतलब एलसी का मतलब है कि सेलर विल रिसीव फुल अमाउंट्स इफ दे डू द शिपमेंट, सब कुछ सही ढंग से करेंगे तो ये बैंक आपको गारंटी दे रहा है. अगर कल के डेट में बायर आपका डिफॉल्ट कर जाता है, सो बैंक विल मेक दैट पर्टिकुलर पेमेंट. भले ही बैंक बायर के साथ कैसे भी डील करे, दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट सेलर विल रिसीव दैट मनी. सो दैट इज एलसी आपका, स्टैंड बाय एलसी. और टू पुट इट लेमन्स वर्ड, सो ऑलमोस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गारंटी. The uses of standby LC is mostly witnessed in countries like USA, where financial guarantee are not used and standby LC act as a substitute of guarantee. ठीक है, तो ये आपका जो रहता है. This type of LC is opened by bank in countries where there restriction of issuing of guarantee, and therefore standby LC provide a suitable substitute for performance or financial guarantee. The documents required are bare minimum, like proof of delivery of goods, proof of non-performance और a simple claim form. ठीक है, so इंडिया में अगर हम लोग बात करें आपका, ठीक है, so use of standby LC by authorized dealers. Bank can establish standby LC for following transaction as a document of promise in respect of non-performance situation, especially as substitution or to guarantee, which authorized dealers are permitted to issue under FEMA 1999. तो जिसमें आपका an exporter on account of export into India owed to a person resident in India by a person resident outside India for a bona fide trade transaction duly covered by a counter guarantee of bank of international repute or resident abroad. Exporter may also opt to receive standby LC standby LC in respect of exporters from India also. ठीक है, bankers commercial standby bankers have been permitted by Reserve Bank of India to issue standby LC toward import of goods into since standby LC covering import of goods and susceptible to certain attendant risk in the absence of evidence of shipments issue. Insurance cover, importers should be advised and explain of the risk factors involved, chances of abuse in according to the request of establishment of standby LC for importer of goods into India. ठीक है, तो बेसिक आपका जैसे और कंट्रीज में होता है वैसे यहाँ पे भी जो यूज होगा. The following safeguard may be taken where standby LC are issued by the banks.
जिसमें आपका द फैसिलिटी ऑफ इशूइंग कमर्शियल स्टैंड बाय मे बी एक्सटेंडेड ऑन सेलेक्टिव बेसिस एंड ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे following categories of importers only, where such standby are required by the applicants who are independent power producers, importer of crude oil and petroleum product. Special category of importers like export houses, trading, star trading houses, superstar trading houses, 100% AOUs. ठीक है. Public sector unit, public limited companies with good track records and others. ठीक है. तो ये जो सारे एरियाज आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फेज आपका, ठीक है, और फाइनल फेज इज इंटोकॉम्स. ठीक है. सो अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी, इनको टर्म्स. ठीक है. इनको टर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. ठीक है. ये जो आपका एलसी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कुछ एब्रीविएशंस के साथ. ठीक है. सो दे जनरली नोन एज इनको टर्म्स. ठीक है. सो इनको टर्म्स 2000 जो अभी आपका काम कर रहे हैं, 2020 सॉरी, पहले 2010 थे आपका, अभी है आपका 2020 आपका. सो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफन नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस in their respective countries, which can cause misunderstanding resulting in unnecessary dispute. As such, ICC published a set of international rules for interpretation of trade terms, which is known as Incoterms. The ICC publication on Incoterms has been updated several times. The latest version being Incoterms 2020. The full form of Incoterms is International Commercial Terms. तो मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, मतलब जैसे हमने बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस 39 आर्टिकल्स के दौरान हमने आपका समझाई. अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है यार कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है या सेलर की है, तो उसको भी उसने सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ इनकोटर्म्स. ठीक है. तो उसने आपका टर्मिनोलॉजी दे दिया, आपका जैसे कोई भी एक टर्मिनोलॉजी, इट बिलोंग्स टू बायर और सेलर, ऐसा उन्होंने बना दिया. आई विल शो यू द लिस्ट आल्सो. ठीक है. सो हियर वी हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इनकोटर्म्स 2020. सो इनकोटर्म्स अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज. They deal only with the relationship between seller and buyer. These can be broadly classified into 4 categories. ठीक है. कौन सा? डिपार्चर, मेन कैरेज पेड, मेन कैरेज अनपेड एंड अराइवल. ठीक है. तो ये 3-4 आपके जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पहला आपका एक्स वर्कर्स, नेम प्लेस. एक्स वर्कर्स जैसे जामनगर और पुणे आपका. ठीक है. ये जनरली सेलर को रहता है. ठीक है. सेलर को और बायर को, हाँ, इट इज सेलर, यस. हाँ, जैसे आपका CFR, अगर हम लोग देखें डिपार्चर में सिर्फ एक मेन कैरेज पेड, CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट, CFR कॉस्ट एंड फ्रेट. ठीक है. नेम पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, CFR, जैसे आपका, जैसे अगर हम जामनगर का बात करें तो JNPT, या अगर हम पुणे का बात, या चेन्नई आपका है. ठीक है. CFR चेन्नई या अदर्स. ठीक है. CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. ठीक है. CIF स्टैंड फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट. नेम्ड पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसे आपका ऊपर था. ठीक है. इसके अलावा CPT कैरेज पेड टू, नेम ऑफ नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जैसे CPT दुबई. CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, नेम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, CIP दुबई. ये सब आपका बायर्स में, अपार्ट फ्रॉम दिस बिलोंग टू सेलर एंड हाँ, these are belongs to destination, सारे बायर्स के, डेस्टिनेशन बायर्स के रहेंगे. ठीक है. FCA फ्री कैरियर. ठीक है. सो नेम प्लेस FCA मुंबई. FAS आपका फ्री लॉन्ग साइड शिप, नेम पोर्ट ऑफ शिपमेंट, सो दिस विल बिलोंग्स टू द सेलर्स आपका. ठीक है. FOB फ्री ऑन बोर्ड. ठीक है. नेम पोर्ट ऑफ शिपमेंट्स. DAT डिलीवर्ड एट टर्मिनल, नेम टर्मिनल एट पोर्ट और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है. DPU डिलीवर्ड एट प्लेस एंड DDP आपका डिलीवर्ड ड्यूटी पेड आपका. ठीक है. सो 11 इनकोटर्म्स आर करेंटली इन यूज. ठीक है. सो टोटल आपका कितने इनकोटर्म्स हैं? 11 in use. These need to be known while transacting a foreign trade or handling
ऑफ फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मतलब जब आपका फॉरेन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को या एलसीएन को आप देखते हैं तो दे विल यूज दीज पर्टिकुलर शॉर्टकट्स, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ एब्रिविएशंस हैं आपका एलसी से रिलेटेड हुए फॉरेन ट्रेड में यूज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं एलसी को एज अ कोड इन डॉक्यूमेंट, ये जो इनको टर्म्स है इनको हम एज अ कोड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यू शुड नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग। एग्जामिनेशन में इनको टर्म्स बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। इवन इन द रीसेंट वन जून जुलाई वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी आपका देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनको टर्म्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग, लाइक जैसे अगर हम लोग बात करें इनको टर्म्स, ऑब्लिगेशन एंड चार्ज for buyers and seller, the various responsibility of supplier and buyers are shown in the figure. You can see as you move from left to right, and the obligation of seller increase and whereas the buyers decrease. The first leftmost incoterms impose maximum responsibility on buyers and then last वाला आपका on seller, ठीक है। जैसे incoterms आपका है, ठीक है, warehouse, ठीक है, आपका seller, warehouse responsibilities seller, EXW, FAS, FCA, ये हमारे जो 11 इनको टर्म्स हमने जो पढ़े थे, ठीक है। सो इनिशियली ऑन बायर्स, ठीक है, सो आपका सर्विसेज, एक्सपोर्ट, पैकिंग, लैंडिंग एट पोर्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इनलैंड फ्रेट, ओरिजिन पोर्ट चार्ज, ओरिजिन फॉरवर्ड फ्री फीस आपका, देन ओशियन एंड एयर फ्रेट, देन वी हैव डेस्टिनेशन पोर्ट चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ड्यूटीज, एवरीथिंग। तो ये आपका बायर टू सेलर आपका कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली मैक्सिमम ऑन बायर, ठीक है, आपका देन इट इज ऑन सेलर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका जो इस तरीके से जो आपका डिजाइन किया गया, ठीक है। सो और जो कहीं ना कहीं लाइक दीज टर्मिनोलॉजी जब आपका जैसे जो डॉक्यूमेंट्स या अदर्स डॉक्यूमेंटेशन पार्ट या अदर्स होगा तो उसमें जनरली वी यूज दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इन सबको याद करो, बट हाँ इफ यू हैव अ फेयर आइडिया आल्सो, इफ यू लुक बिफोर जस्ट आफ्टर बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो वहां पे भी आप सीक्वेंस या अदर्स इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कुछ एब्रीविएशंस को आप याद रख सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस इज इट, दिस इज द कोर्स कंटेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, so basic definition, then we have type of letter of credit, then we have operations of letter of credit, uniform custom and practices for documentary letter of credit which are generally known as UCP 600, liabilities, responsibilities and right of parties, document under LC, we have scrutiny, we have crystallization, follow up for bill under LC, and safeguard for bank, risk related to LC, standby letter of credit, uniform rule for bank to bank reimbursement, international standard practices, and the international commercial terms which are generally known as Incoterms, ठीक है। So with the same sequence as well, or in this particular session we are going to discuss all like around 40 plus MCQs and cases, like kind of application based question, ठीक है। This case study portion we will come up with a separate session, ठीक है। So I do not want any kind of confusion, तो आप like still we have 70% weightage of MCQs in your application based questions, ठीक है। So थोड़ा सा MCQs आपके tougher side में होंगे, statement based and all, ठीक है। एंड 30% द ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द BFM सब्जेक्ट, ठीक है, तो वहां पे आपको जो न्यूमेरिकल्स जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। सो क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ LC, ठीक है। तो LC का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू सेफगार्ड द सेलर्स पेमेंट, ठीक है। सो to guarantee a seller to receive a payment from the buyer, ठीक है। So it is a kind of like standby LC जिसको हम लोग बोलते हैं। So like there is a difference between LC and आपका standby LC, ठीक है। So LC we generally make promises कि if you'll fulfill the conditions of that particular contract or the sale agreement, ठीक है, so we will make you payment, and that contract the contractual guarantee is generally provided by standby LC, ठीक है। तो ये आपका B will be right answer for this one. An LC is issued by a bank, guarantee payment to seller in case the buyer default, ठीक है। So अगर buyer default करता है तो bank, the issuing bank will make the payment. It ensure that seller receive payment upon submitting compliant documents, ठीक है। So जैसे जो भी सेल एग्रीमेंट आपका बायर सेलर के बीच में, if seller fulfill those particular term and conditions, so they'll get payment from the
issuing bank of that particular LC, and even if the buyer default in any case, right? So a letter of credit is a document sent from a bank or financial institute that guarantee that a seller will receive a buyer payment on time and for the full amount. LC are often used within the international trade industry, ठीक है? So this is the entire process, ठीक है? So let's say ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी किए थे, ठीक है? So let's say the quick recap for this one, ठीक है? So let's say there is a buyer from India, ठीक है? एक बायर आपका है जो कि इंडिया से आपका है, ठीक है? So they made a purchase, let's say. So उन्होंने आपका कोई परचेज आपका किया है, ठीक है? So first of all, buyer and seller, ठीक है? So buyer from India and seller from US. So there is a sale agreement between these two parties, ठीक है? So while basically LC is kind of a optional document, ठीक है? It is not a mandatory document, ठीक है? But this contract make it compulsory or legal, ठीक है? तो अब जो ये आपका सेल एग्रीमेंट हुआ है उसमें अगर रेफरेंस आपका दिया है कि this UCP 600 guidelines will be applied in that particular case, that give the legal status to that particular document, ठीक है? Otherwise like जैसे जो ICC की गाइडलाइंस है, like that is वो ऑप्शनल होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको कंपलसरी ही आपको जो UCP 600 वही फॉलो करने होंगे, बट दिस डॉक्यूमेंट मेक इट कंपलसरी, ठीक है? तो अब ये जैसे बायर और सेलर के बीच में कोई बाई चीज, जैसे लेट्स से दे वांट टू परचेज 1 लाख मार्कर फ्रॉम यूएस, तो इनके बीच में जो वॉट एवर द इनवॉइस वैल्यू, ठीक है? तो जो भी आपका वैल्यू है, सो फॉर दैट सेक दिस बायर विल अप्रोच टू देयर इशूइंग बैंक या देयर लोकल बैंक, so which is like buyer apply for the applicant. So this is generally known as applicant and it is issuing bank, ठीक है? issuing bank जो कि हमारा domestic bank है, let's say it is SBI, ठीक है? So now this issuing bank, let's say SBI, will connect to the advising bank, or which is most of the cases in nominated bank, ठीक है? So advising bank or nominated bank is basically a correspondent bank जो कि आपका जो हमारा लोकल बैंक है उसका करस्पॉन्डेंट बैंक है, ठीक है? एंड नॉमिनेटेड बैंक विच इज गेट नॉमिनेटेड बाय द सेलर, ठीक है? सो इट लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर सेम बट इट कैन बी डिफर आल्सो, ठीक है? सो दिस एडवाइजिंग बैंक इशू एलसी, सॉरी इशूइंग बैंक इशू एलसी टू द एडवाइजिंग बैंक आपका, ठीक है? देन दे विल कंफर्म दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है? सो नाउ इट इज द नेक्स्ट स्टेप इज advises the LC to seller, ठीक है? तो इस तरीके से जो इसका आपका नॉमिनेटेड बैंक है वो, ठीक है? नाउ सेलर विल शिप द गुड, ठीक है? जैसे शिपमेंट आपका हो गया, ठीक है? तो देन इसी दौरान आपका और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ लेडिंग है या अदर्स हैं, वो सारी चीजें, ठीक है? सो देन आफ्टर द मेकिंग द शिपमेंट, present required documents to the advising or to the nominated bank will send to advising bank if they are differ, ठीक है? अगर सेम है तो ये चलेगा, ठीक है? Then these documents, this advising bank, इसको यहाँ से पेमेंट मिल जाएगा. Advising bank will issue these particular document or share these document with issuing bank, ठीक है? So nominated bank present a document to the issuing bank, ठीक है? And based on these particular documents, this issuing bank will make payment on behalf of seller, buyer, ठीक है? Then buyer will make payment to your issuing bank. तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड आपका है बेसिकली उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, नाउ विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दिस सेलर, ये जो आपका सेलर है एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? सो उसको एक कंफर्मिटी है कि हाँ ही विल रिसीव हिज पेमेंट इन फुल अमाउंट इफ ही फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी यहाँ पे आपकी चीजें हैं, ठीक है? तो जो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका एलसी का अमाउंट होगा, ठीक है? लेट्स से द एलसी अमाउंट इज 50,000 US डॉलर, ठीक है? सो दिस एलसी अमाउंट इज 50,000 US डॉलर, ठीक है? सो जो अदर चीजें आपकी अलाइन होंगी, लाइक इंश्योरेंस, इट शुड बी दिस, आपका जो बिल ऑफ लेडिंग्स में जो आपके इंफॉर्मेशन होंगे, सो दिस विल बी, सो दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट व्हिच लाइक दिस बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट्स आल्सो, ठीक है? तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है अदर्स हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग से आपका अलाइन होंगे, ठीक है? अब इसी का और ज्यादा डिटेल में दिस इज द प्रोसेस, ठीक है? तो जैसे आपका ऑर्डर, ठीक है? सो देयर इज एन इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया, देयर इज एन एक्सपोर्टर फ्रॉम यूएस, ठीक है? सो this importer place an order with this US seller, ठीक है? जो आपका seller है उसके साथ आपका, ठीक है? So and he confirmed the order and they generate some invoices, ठीक है? Then the third process is applicant, आपका ये जो importer है he is आपका applicant
एंड एप्लीकेंट की सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। सो एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर एलसी, ठीक है, तो आपका इसका जो इंपोर्टर बैंक है इंडिया का, उसके साथ इसने ये किया, ठीक है। देन आपका आफ्टर दिस एप्लीकेंट, ठीक है, ही रिसीव द तो ये जो आपका एप्लीकेंट बैंक है, इंपोर्टर बैंक है आपका, they'll send it to their advising बैंक, ठीक है, जो आपका करस्पॉन्डेंट बैंक होगा, ठीक है, एंड they'll send it to nominated बैंक। तो इस तरीके से पूरा, ठीक है। तो जैसे आपका एलसी ट्रांसमिशन स्विफ्ट MT70 मैसेजेस के थ्रू आपका ये होता है, ठीक है, फोर्थ वन, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज एलसी एडवाइजिंग, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज गुड्स आर सॉरी एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज। देन आपका जो भी एक्सपोर्ट हमारा कस्टम है, ओवरसीज कस्टम है, ठीक है। देन आपका गुड्स आर शिप्ड, ठीक है, ये आपका, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट 7 नंबर हमारा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज आपका एंड गुड्स आर शिप्ड। देन वी आर गोइंग टू, जैसे जो IDPMS, आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है, आपका इंपोर्ट डेटा प्रमोशन मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे इंपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से सेवंथ इज प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एट्थ इज आपका ये जो प्रेजेंट हुए डॉक्यूमेंट्स किसको, एलसी एडवाइजिंग बैंक को, ठीक है। देन आपका सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द स्क्रूटनी, ठीक है। सो देन आपका नाइन्थ इज डिलीवर डॉक्यूमेंट्स इन कंप्लायंस ऑफ एलसी। टेंथ इज आपका पेमेंट टू बी मेड एट साइट और ऑन ड्यू। साइट बिल क्या होता है, विच इज ऑन डिमांड, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे वैसी पेमेंट होगी। दूसरा आपका ड्यू, विच इज ऑल्सो नोन एज ओसेंस बिल्स, टाइप्स ऑफ एलसीज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका जो भी डेट है, जैसे दे आर लाइक, जैसे वहां पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 60 डेज और वॉट एवर द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। एंड द स्विफ्ट कोड इज स्विफ्ट MT202, ठीक है, विच इज समथिंग पेमेंट मेड एट साइट और ऑन ड्यू डेट, ठीक है। देन आपका 11th इज क्रेडिट एडवाइस, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद दी BOE डिटेल, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपकी ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट विच वी एक्चुअली फॉलो इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, जब आपका ये मतलब एलसी आपका जनरेट होता है और उसमें एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, व्हाट इज नॉट अ रिस्क एसोसिएटेड विद एलसी ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सा एलसी के साथ रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। रिजेक्टिंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, इट इज आपका रहेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड डिसीजन दैट कॉन्फ्लिक्ट विद UCPDC रूल्स, बिल्कुल ये भी रहेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। करेंसी लिमिटेशंस, डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड बिफोर द अराइवल ऑफ द आइटम, ऐसा ये मतलब दिस इज नॉट अ रिस्क, ठीक है। सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग assertion regarding authorized dealers use of standby LC is accurate। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, देखो क्या होता है, दो चीजें, एक है आपका LC और दूसरा आपका स्टैंड बाय एलसी। देयर आर सम कंट्री लाइक US, UK, so where you cannot issue any kind of financial guarantee, so the replacement of that financial guarantee is generally known as standby LC, ठीक है। तो अब हमने, क्योंकि यहाँ पे इवेंचुअली व्हाट वी आर गिविंग टू द सेलर एक फाइनेंशियल गारंटी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक टर्म अलग से लेके आए, दैट इज स्टैंड बाय गारंटी। तो व्हाट इज एलसी, इट इज एलसी विच इज like providing a guarantee to the seller if he fulfill the condition and all, and standby LC is basically it is protecting that particular contract. If buyer will not make payment, as a bank we will make you the payment, so that is the one, ठीक है। So standby LC can be established by export transaction only, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, export import कहीं भी हो सकता है। Standby LC are issued as replacement of guarantee, हाँ this is true, replacement of guarantee under FEMA 1999 for non-performance situation, 100% true. Standby LC for import good are not susceptible to any risk. Standby LC can only be issued no, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन ऑल, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, standby LC are provided in place of guarantee under FEMA 1999.
Bank may use standby LC as a promised document non-performance circumstances for non-performance circumstances. The guarantee that authorized dealers are allowed to provide under FEMA 1999. ठीक है. So ये मतलब आपका एक kind of जैसे मैंने इसका आपका इतिहास बताया उस तरीके से. ठीक है. So now you have to go through the statement and you have to identify the incorrect one. So which of the following statement is incorrect about the LC documents? ठीक है, अच्छे स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे. इनकरेक्ट ढूंढना है. ठीक है. स्टेटमेंट 1 आपका द इनवॉइस वैल्यू में एक्सीड द लेटर ऑफ क्रेडिट. नो, ऐसा नहीं है. ठीक है, फर्स्ट ही गलत है. द वैल्यू मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, परफॉर्मा इनवॉइसेस नंबर and the number of LC along with the issuing bank name. True. दूसरा सही है. ठीक है. So second statement is true. Statement 3, the description of goods in the invoice must match with the description of good under the LC. Again true. ठीक है. The invoice should be drawn by the beneficiary on the issuing, no, not issuing bank. Issuing bank नहीं होगा आपका, बल्कि किसके ऊपर होगा आपका, जो कस्टमर, जो बायर है उसके ऊपर आपका. ठीक है. सो स्टे एंड पेबल एट टेन्योर मेंशन. हाँ, दिस इज ट्रू बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो हमें ढूंढना था आपका क्या रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. तो आपका 1 in 4. ठीक है. सो 1 in 4 मीन्स ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. सो प्लीज डू पे अटेंशन एंड प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. देखो ऐसे ही स्टेटमेंट आपको वहां पे मिलेंगे, जितना ज्यादा आप इनके साथ फेमिलियर होंगे, जितना ज्यादा गो थ्रू करेंगे, वो चीजें आपको हेल्प करेंगे. ठीक है. तो छोटे क्वेश्चन जनरली आपको आपके कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं, जहां पे आप बड़े क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर सकें. ठीक है. तो अब आते हैं अगले उसमें. Which of the following is the correct sequence in LC process? So out of the given 4 steps, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका एप्लीकेंट होगा. ठीक है. इंपोर्टर आपका, देन एप्लीकेंट विल आपका अप्रोच टू दी your issuing bank to advising bank to nominated and then आपका applicant. ठीक है. तो इस तरीके की जो जर्नी आपकी रहेगी. ठीक है. सो इश्यूइंग बैंक नहीं, एप्लीकेंट से शुरू होगा. एप्लीकेंट. ठीक है. देन आपका इश्यूइंग बैंक. ठीक है. बेनिफिशियरी नहीं होगा. सो एडवाइजिंग बैंक एंड आपका बेनिफिशियरी. बिल्कुल सही. ठीक है. तो आपका क्या होगा आंसर, आपको बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अंडरस्टूड. सो एज पर द गिवन प्रोसेस. अब देखो क्या था जो अभी हमने the process we gone through, that entire chart and all within like with the 13 different steps including swift empty transfers also, so that is based on that particular one. ठीक है. तो ये सेम चीजें आपका जो हमने उस इमेज में देखी वही आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. सो नाउ वी हैव लाइक जैसे कुछ चीजें आपका पार्टीज इन्वॉल्व इन LC अगर हम बात करते हैं. ठीक है. इफ यू हैव कंफ्यूजन, सो दिस इज द चार्ट विच इज गोइंग टू हेल्प यू. So first we have buyer or importer, which is known as applicant. Applicant means buyer. ठीक है. On whose behalf LC is open. ठीक है. The seller, सबसे ज्यादा liabilities इसकी होती हैं. ठीक है. मतलब अगर किसी दूसरे कंट्री जहां पे आपका सेलर है वहां से अगर कोई कंट्री वाइज कोई चेंज या अदर्स होता है, जिनकी वजह से आपके इशूइंग बैंक को कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, सो इवेंचुअली दिस एप्लीकेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल. या अगर ये डील को अगर सही ढंग से डिस्क्लोज करके नहीं बताता है, बाद में प्रॉब्लम आता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. The seller आपका exporter, beneficiary of LC, who is going to receive that money. The opening bank आपका buyer bank जिसको हम लोग बोलते हैं, who issue the LC. The advising bank आपका the seller bank or exporter country who act as an agent of the issuing bank and authenticate and advise the LC. ठीक है. जैसे SBI का आपका जो correspondent बैंक था या जो seller के country का एक बैंक आपका. ठीक. Confirming bank who undertake to pay on behalf of the issuing bank. Basically जो beneficiary का बैंक है वो आपका. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन गाइस. At what stage in LC process does the confirming bank become liable for payment? ठीक है. तो confirming bank आपका liable कब बनेगा? When he'll receive the documents आपका. This is the kind of a final stage. ठीक है. So when LC is issued, no. When a beneficiary submit compliant documents, हाँ बिल्कुल सही. ठीक है. compliant documents receive होंगे तो ये होगा. ठीक है. तो B should be right answer. When the bank advising for no, आपका when applicant accept no. ठीक है. तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? B will be right answer for this one. ठीक है. So a confirming bank is liable to honor payments only after the beneficiary submit compliant documents
as per the UCP 600 Article 8, it provide an additional payment guarantee along with the issuing bank. ठीक है, next one guys. In LC process, what happen if document are found to be discrepant? ठीक है, तो अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें थोड़ा छेड़छाड़ है या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, तो इश्यूइंग बैंक मस्ट ऑनर पेमेंट रिगार्डलेस ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज. The advising bank must resolve discrepancies before the submission. The issuing bank refer to matter to the applicant for the acceptance or rejection. ठीक है, आपका the confirming bank must honor the payment if discrepancies are excluded. ठीक है, the advising bank must resolve discrepancies before. नहीं, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? The issuing bank refer the matter to the applicant for the acceptance or rejection. So C will be right answer in this particular case. Next one, under UCP 600, which of the following responsible for ensuring the authenticity of an letter of credit before advising it to the beneficiary? बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. Which bank is responsible for ensuring the authenticity of the LC? सो कौन होगा? आपका एडवाइजिंग बैंक. ठीक है, जैसे इंडियन बैंक ने आपका ओपन किया, सो दे विल सेंड इट फॉर एडवाइजिंग टू द सेलर कंट्री बैंक. बेसिकली दे आर देयर करस्पॉन्डेंट बैंक. ठीक है, तो वो अगर एडवाइस करना चाहता है या नहीं करना चाहता, दैट इज वो उसका कंसेंट है. ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. सो अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 आर्टिकल 9, an advising bank must check the authenticity of the LC before informing the beneficiary. However, it does not assume payment liability unless it confirmed LC. ठीक है, next one. Which most recent revision of uniform custom and practices of for documentary letter of credit is effective right now? तो क्या है आपका UCP 600. ठीक है, सो थोड़ा सा मैं इनको आपको दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. ठीक है, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो यूसीपी 600 या यूसीपी गाइडलाइंस आर जनरली इश्यूड बाय आईसीसी. ठीक है, सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स which is an apex trade body at the international level. ठीक है, so 1933 was the time when they released the first set. As of now we have 6th revision. ठीक है, 6 बार आपके चेंज हुए. दिस इज द यूसीपी 6 इज द 6th वन. ठीक है, जो जुलाई 2007 से आपका इंप्लीमेंट हुआ है. ठीक है, so these are basically kind of advisory, but that contract or that LC document made them compulsory. ठीक है, तो वहां पे उसका लिखा जाता है रेफरेंस आपका कि we will do this trade with reference to this. ठीक है, so UCP 600 is most recent modification to the uniform custom and practices for documentary credit, which has undergone several revision. At the meeting of October 6, the ICC Banking Commission passed UCP 600, which became effective from July 1st, 2007. International Chamber of Commerce (ICC) first framed the standardized in 1933. तो तब से अब तक आपका 6th आपका जो एडिशन है, and the present one is UCP 600. ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है. UCP 600 की जो गाइडलाइंस हैं या जो इसके जो आपके like it can include 39 articles. ठीक है, so आपका जो यहाँ पे टोटल आर्टिकल्स हैं, we have 39 articles. ठीक है, so the entire journey of this आपका documentary letter of credit is defined under these आपका 39 articles. तो जिसमें आपका who will be the applicant, what will be the responsibility of issuing bank or the advising bank or the documentation, insurance, ये सारी चीजें ना आपका यहाँ पे जिनको डिकोड किया गया है. ठीक है, सो यूसीपी 600 दे आर इश्यूड बाय आईसीसी. एम ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग इंटरनेशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी आपका. ठीक है, देखो क्यों बनाया गया? सो वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, क्योंकि जैसे इंडिया का ट्रेड यूएस के साथ है, इंडिया का आपका चाइना के साथ है, इंडिया का रशिया के साथ है, तो हर एक कंट्री के गाइडलाइंस अलग अलग है. ठीक है, so when one exporter is dealing with multiple countries, अगर हर एक की जगह के गाइडलाइंस को समझने लग गया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा. so for that sake we have these particular guidelines. ठीक है, so many bank and lenders are subject to this regulation, which aim to standardize international trade, reduce the risk of trading goods and services and govern the trade as well. ठीक है, so UCP first was created in 1933 and the recent one is 600. and इन बिटवीन जैसे आपके
कोर्स करिकुलम के अंदर सारे यूसीपीस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 भी हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अंडर यूसीपी 600 इफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट डज नॉट स्पेसिफाई whether it is revocable or irrevocable, so it is considered as irrevocable, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि ये चेंज किया गया था आपका यूसीपी 600 के अंदर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ यूसीपी 600, इफ एन एलसी डज नॉट explicitly state whether it is revocable or irrevocable, it is by default will consider as irrevocable, ठीक है। So this rule was introduced to improve the security for beneficiaries, ठीक है। मतलब irrevocable और revocable means we can change the conditions of that payments and all, ठीक है। Irrevocable is like whatever is mentioned in that particular LC, that is kind of an unconditional order to make that particular payment, so there will be no changes in that particular one. But in case of revocable जो पहले चलता था उसमें आपका दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ आपका चेंजेस होते थे, बट उसकी वजह से भी बहुत सारे डिस्प्यूट आपका जो देखने के लिए मिलते थे। सो दैट्स व्हाई नाउअडेज वी हैव दिस एन आर्टिकल 3 जहां पे इसके बारे में बात किया गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कंफर्म्ड एलसी, ठीक है। सो जहां पे आपका लाइक इट इज कि जैसे इट प्रोवाइड एडिशनल एश्योरेंस फ्रॉम द एडवाइजिंग बैंक, इट रिमूव द लाइबिलिटी ऑफ इश्यूइंग बैंक, इट रिक्वायर द बेनिफिशियरी कंसेंट, नो, इट ओनली एप्लीकेबल, नो। सो ये क्या होगा, इट रिमूव द इट प्रोवाइड द एडिशनल एश्योरेंस फ्रॉम द एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। सो आपका ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। सो कंफर्म्ड एलसी मींस द सेकंड बैंक, कंफर्मिंग बैंक, guarantee payment in addition to issuing bank, reducing the risk for the exporters, ठीक है। If a bill of lading ये बहुत इंपॉर्टेंट है, bill of lading आपका, ठीक है, अंडर LC is dated before the LC issue date, तो क्या होना चाहिए आपका, it should be rejected, ठीक है। If a bill of lading under an LC is dated before the LC issuance, it should be rejected, ठीक है। So rejected as it does not comply with the terms LC terms, ठीक है। So B will be right answer for this one, ठीक है। A bill of lading must not be dated before the issuance date of LC as contradict the contractual obligation and could indicate fraud as well, ठीक है। Next one, UCP 600, which of the following is not responsibility of issuing bank, ठीक है। जो issuing bank है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है, ठीक है। सो इंश्योरिंग डॉक्यूमेंट कंप्लाई विद द लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरीफाइंग द एक्चुअल शिपमेंट ऑफ गुड, ये नहीं होगा उसका, ठीक है। मेकिंग पेमेंट अपॉन द डॉक्यूमेंट कंप्लाइंस, यस। अदरेंस टू एग्रीड एग्जामिनेशन पीरियड, यस। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, वेरीफाइंग द एक्चुअल शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपका बायर करेगा ना, वो क्यों करेगा, ठीक है। So this is the one, ठीक है। So UCP 600 deal strictly with documents, not with the goods। ना एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। So यहाँ पे these financial institution, these means issuing आपका advising and nominated, ठीक है। They are dealing in financial things, ठीक है। They are not dealing in the goods and all, ठीक है। ये सब चीजें आपका उसका काम नहीं होगा, ठीक है। Which UCP DC item state that LC must immediately be recognized as legitimate on the following working day if the last date for the presentation of document fall under the holiday, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखो the LC this is must immediately be recognized as legitimate on the following working day, preceding नहीं following, जैसे 26 जनवरी इज हॉलीडे इन इंडिया, तो 27 जनवरी आपका, ठीक है। तो ये जो बात है ना, कहां पे बोला गया है आपका, आर्टिकल 29A, ठीक है। सो आर्टिकल 29A ऑफ यूसीपी 600, वैसे इतने डीप में क्वेश्चन नहीं देगा, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड, ठीक है, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। सो यूसीपी 600 वी हैव 39 आर्टिकल्स and they are applicable more than 175 countries around the world. Now the clubbing of these particular articles, so here we have a list, quickly go through this। तो ये मैंने आपको कराया भी था, ठीक है। तो इसमें टोटल 39 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 1 to 5 1 2 3 4 5
डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 6 to 10 अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस, obligation of issuing and confirming bank, advising credit and amendments. 11 to 17 pre-advised credit, nominated bank, reimbursement arrangement, complying presentation, original documents. 18 article 18 commercial invoices, 19 to 27 transport documents, 28 insurance document, 29 to 33 extension tolerance, पार्शियल एंड इंस्टॉलमेंट ड्रॉइंग एंड आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। 34 to 37 डिस्क्लेमर्स, 38 39 ट्रांसफरेबिलिटी एंड असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड, ठीक है। सो ये आपका कब के लिए है? सो जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, ठीक है, तो उससे आधा घंटा पहले जब आप पहुंच जाते हैं, आई विल प्रोवाइड यू अ क्विक रिविजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। हर साल मैं आपको ये करता हूँ कि आई विल कम अप विद अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे कम से कम 100-150 पेजेस होंगे फॉर एंटायर बीएफएम सब्जेक्ट। तो उसमें ऐसी जो चीजें होती हैं क्विक, लाइक जो मतलब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप बस एग्जाम से पहले उनको दिमाग में बैठाओ, आंसर करते ही उनको वॉमिट कर दो, खत्म, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट वन, अंडर यूसीपी 600 इफ एन एलसी रिक्वायर अ कमर्शियल इनवॉइस बट डज नॉट स्पेसिफाई हु शुड इश्यू इट, the invoice must be issued by किसके द्वारा? बेनिफिशियरी के द्वारा, ठीक है। सो यस, हाँ, सो बेनिफिशियरी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 आर्टिकल 18 सब आर्टिकल 1, इफ एन एलसी रिक्वायर अ कमर्शियल इनवॉइस बट डज नॉट स्पेसिफाई हु शुड इश्यू इट, तो कौन इश्यू करेगा? बेनिफिशियरी, मींस सेलर आपका, ठीक है। इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बाय द सेलर और बेनिफिशियरी, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, okay, if an LC allow for partial shipment but the second shipment exceed the total LC amount, the bank will, ठीक है। अब देखो क्या है, दो चीजें हैं, ठीक है। लेट्स से LC अलाउ फॉर पार्शियल शिपमेंट, ठीक है। जैसे आपका 10 मिलियन यूएस डॉलर का डील था, LC अमाउंट था 10 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट डिलीवरी वाज लेट्स से आपका 6 मिलियन यूएस डॉलर। दूसरी बात, दे हैव सेंड 7 अगेन 6 सपोज दैट, ठीक है। तो 6 मिलियन 12 मिलियन, बट एलसी इज ड्रॉन फॉर 10 मिलियन ओनली, ठीक है। तो ये जो 2 मिलियन, सो एलसी विल अकाउंटेबल फॉर ओनली 10, तो हम लोग आपका कितने तक करेंगे? जितना एलसी लिमिट है उतने तक ही पेमेंट करेंगे। रिमेनिंग 2 दे हैव टू ड्रॉ फ्रेश एलसी फॉर दैट वन, ठीक है। सो ऑनर ओनली द अमाउंट विद इन द लिमिट ओनली, पहला ही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू पे द 12 मिलियन, ठीक है। यू हैव टू पे $10 million only. So that was our part of the LC document. Okay? So Article 30, if partial shipment are allowed, but the second shipment exceed the LC value, the bank will only honor the amount within the LC limit. Okay? Next one, guys. A bank issue a confirmed LC, and confirming bank honor a complaint, a presentation, complaint presentation. Okay? Later, the issuing bank refuse to reimburse the confirming bank due to applicant insolvency. What action can be confirming bank take? ठीक है। So recover payment from the beneficiary, seek reimbursement from the applicant, demand payment from the issuing bank, reverse the payment. So what will be the action in this particular case? कहाँ पे जाएंगे हम लोग? हम लोग जाएंगे डिमांड पेमेंट फ्रॉम द इश्यूइंग बैंक, ठीक है। सो बिकॉज लाइक बेनिफिशियरी से तो हम क्यों ही लेंगे, ठीक है। सो उसने तो पेमेंट करनी है ना, सो ही इज गोइंग टू रिसीव दिस वन। एप्लीकेंट के पास हम लोग नहीं जाते हैं, अगर इंसॉल्वेंसी है तो दैट आपका स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट विल हेल्प अस आउट एंड दैट इश्यूइंग बैंक विल मेक द पेमेंट, ओके। सो आर्टिकल 8, a confirming bank is entitled to reimbursement from the issuing bank once it has honored compliant presentation, मतलब जो भी requirement documents थे वो सब कुछ present हो गए, लेकिन so regardless of the applicant insolvency. Next one, if a letter of credit require presentation within 21 days after the bill of lading date, but the expiry date fall within 15 days, what is the maximum allowable presentation period? अगर एक्सपायरी 15 है तो आपका इसका भी आंसर क्या होगा? 15 days होगा, ठीक है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट वन, ठीक है। सो विल नॉट वेट फॉर द 21 days इन ऑल। इफ एक्सपायरी इज 15 days, सो हम लोग इसको यहीं पे आपका प्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
सो आर्टिकल 14 सबसेक्शन सी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस, फॉर योर रेफरेंसेस. Presentation is earlier of the presentation period or the LC expiry date. Since the expiry is 15, so document must be presented within the period. Okay, next one. Under UCP 600, if advising bank choose not to advise an LC due to doubt about the authenticity, it is if an advising bank choose not to advise an LC, ये जैसा हमारे ओपनिंग बैंक ने एडवाइस करने के लिए भेजा, उसने मना कर दिया, ठीक है, ड्यू टू डाउट अबाउट द ऑथेंटिसिटी, उसको डाउटफुल है आपका, या तो ये बैंक जो एडवाइस करवा रहा है हमसे, ओपनिंग बैंक जो है वही पेमेंट नहीं करेगा, या जो बायर है आपका वो भी नहीं करेगा, क्योंकि बायर की हिस्ट्री भी हमारे पास होती है, ठीक है. सो अब नोटिफाई टू द इशूइंग इमीडिएटली, ठीक है, सी कंफर्मेशन फ्रॉम द बेनिफिशियरी, फॉरवर्ड the LC with disclaimer, return the LC to the issuing bank without notice. ठीक है, तो notify आपका A या D में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, A आपका, ठीक है, notify the issuing bank immediately, ठीक है. So article 9, if an advising bank doubt about this, what was D? Return the LC to issue issuing bank without, हाँ, so this will be the right answer, ठीक है. So this is part of the definition itself. Next one, between standby and documentary letter of credit, which of the following distinction exist, ठीक है, तो क्या सही है आपका about these two statement. जैसे मैंने आपको बताया था ना, documentary letter of credit is basically generally provide a guarantee to the seller कि they are going to receive their money, but the standby LC which generally secure, like which generally provide guarantee to your LC कि हाँ भैया ये जो promise किया गया, अगर आपका किसी भी प्रकार की insolvency default होता है from the buyer, ठीक है, और एप्लीकेंट, सो वी विल मेक दैट पेमेंट, ठीक है. सो अ डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट यूज्ड टू गारंटी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही. वेयर एज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यू टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. तो स्टैंड बाय और आपका दिस, ये स्टैंड बाय बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस, ठीक है. इसमें इनका हिस्ट्री लिखा है कहीं पे, अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा होगा, तो वहां पे मैंने आपको इनका रेफरेंस पढ़ा है कि ये स्टैंड बाय क्यों आया, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल गारंटी इज नॉट अलाउड इन सम कंट्रीज, तो वहां से हमने फिर इसको परमानेंट पार्ट बना दिया, ठीक है. विच काइंड ऑफ एलसी ऑफर द बेनिफिशियरी अ कैश एडवांस टू पे फॉर द प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट विल सप्लाइड अंडर द डॉक्यूमेंट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर जनरली नोन एज रेड क्लॉज एलसी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका रेड क्लॉज एलसी, ठीक है आपका. सो इट इज नोन एज रेड क्लॉज एलसी, ठीक है, ध्यान रखें. रेड क्लॉज एलसी इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलसी दैट permit the beneficiary, often the exporter or seller, to get paid in advance before the item is shipped. तो बेसिकली आपका ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनकी, जो एक्सपोर्टर के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको मीटअप करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट वन, अंडर विच टाइप ऑफ एलसी पेमेंट मेड इमीडिएटली अपॉन द प्रेजेंटेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका साइड बिल, ठीक है, साइड एलसी, ठीक है. सो साइड एलसी, ठीक है, दे आर जनरली नोन एज साइड. तो वी हैव टू टाइप ऑफ बिल, वन इज साइड, अनदर वन इज ओसेंस. अगर हम इस हिसाब से देखते हैं, साइड में आपका एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यू विल गेट द पेमेंट. अनदर वन ओसेंस बिल, दे हैव अ टाइम ड्यूरेशन, जैसे उसमें आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या इनका यूज होगा, तो जहां पे आपका जैसे 90 डेज लेटर का आपका जैसे 90 डेज का बिल ऑफ एक्सचेंज आपका इशू कर दिया गया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका उसके हिसाब से आपकी जो पेमेंट्स आपका होंगी, ठीक है. सो साइड बिल अलाउ immediate payment upon the presentation of the required documents. Next one, guys, which type of LC prefers seller as it cannot be modified or cancelled without mutual agreement. Cannot be modified or cancelled without mutual agreement. So it is known as irrevocable LC, ठीक है. So irrevocable LC, आज के डेट में यही चलते हैं आपका irrevocable, ठीक है. The following documents से एक्चुअली ये क्वेश्चन इसका आगे आएगा या पीछे गया होगा. तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो होते हैं आपका जैसे कमर्शियल इनवॉइस, एक्सपोर्टर सेल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एक्सपोर्टर रिसिप्ट फॉर गुड्स बीइंग शिप्ड, ठीक है, ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन द इंपोर्टर्स बैंक, इंपोर्टर प्रॉमिस टू पे, shipping document that confirm the good have arrived, custom declaration, documentation that confirm the good have been cleared through the custom, other documents like insurance and all, they are generally.
ये डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट एंड अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू मैच दिस पर्टिकुलर वन, यूसीपी 600, ठीक है। अ न्यू रिवोकेबल एलसी, डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशंस, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। इधर साइड हमारे पास डेफिनेशन है। अ न्यू सेक्शन ऑफ यूसीपी 600 इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स रिलेटेड टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन इन ऑल, ठीक है। तो तीसरे का हो जाएगा आपका ए। A new version of UCP which was published in 2006, तो ये हो जाएगा आपका B। आपका no longer exist in UCP 600 irrevocable LC आपका C। A new section of UCP 600 clarify the obligation of bank when issuing deferred payment letter of credit, so this is आपका D, ठीक है। तो क्या होगा BCAD, 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 that means BCAD, हाँ। तो आपका D will be right answer for this particular one। समझ में आया, आसान है, ऐसा पेयरिंग क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which of the following claim about the transport paper is false under UCP 600? ट्रांसपोर्ट पेपर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। The name of the carrier is no longer required to be listed on chartered party bill of lading, 100% ट्रू। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है क्या, हाँ ठीक है। ऑल ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट मस्ट स्टेट दैट नेम ऑफ कैरियर एंड बियर द सिग्नेचर ऑफ कैरियर एंड मतलब जो शिपमेंट जिसके थ्रू होती है, ठीक है। डेजिग्नेटेड एजेंट आपका जनरल स्टैंडर्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। वेदर द चार्टर और द एजेंट साइन a chartered party bill of lading, the name of master, ठीक है, this must always be on the documents, this is not necessary, ठीक है। To comply with the credit requirement requiring a document to be clean on board, article 27, transport document no longer need include the word clean, ठीक है। हाँ, this is the change, this is also true, so C should be right answer for this one, yes, C आपका जो correct answer है, ठीक है। So the original content material state that master name on chartered party of bill of lading is not necessary, ठीक है। Next one, which party in charge for providing clear and comprehensive instructions for issuing the letter of credit and protecting bank from any legal responsibility imposed by the country? बताओ क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग आंसर भी कर लिया करो, ठीक है, और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करो, ठीक है, कोई चीज आपको मिलती है तो, राइट। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस, आपका क्या क्या बताया था, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती हैं, एप्लीकेंट की। सो एप्लीकेंट विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो एलसी ट्रांजैक्शन हैज स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन इन लायबिलिटीज फॉर द एप्लीकेंट। तो हमने सारी पार्टीज की लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस को डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। द एप्लीकेंट सप्लाइज एग्जैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द letter of credit issue. This prevent a misunderstanding and guarantee that the LC appropriately reflect the parameters of the commercial transaction, ठीक है, कोई भी confusion बाद में ना हो। The applicant shall define and reimburse the bank against any liabilities or duties resulting from the potential compliance with the foreign laws as well, ठीक है। तो ये भी आपका next one, under UCP 600 is issued by, sorry, अच्छा ये किसके द्वारा इशू होते हैं, ICC, ठीक है। सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आसान है। नेक्स्ट वन, at which stage of LC process does the issuing bank make a final payment? तो जब वो आपका डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, ठीक है। So when the beneficiary present compliant documents, so B will be right answer। आगे, under which Incoterms, अब अगले कुछ क्वेश्चन Incoterms के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, सारा लिस्ट भी हमने डिस्कस किया, आई विल शो यू द लिस्ट आल्सो, ठीक है। और ये भी एक ऐसा टाइम है जो आपका एग्जामिनेशन से जस्ट पहले देखेंगे, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकोटर्म्स डज सेलर बियर ऑल रिस्क एंड अ कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट until the good reach to the buyer's designated port? तो कौन सा इनकोटर्म आपका ये बताता है, आपका CIF, ठीक है। इट इज mentioned under the CIF, ठीक है, cost, insurance and freight आपका, ठीक है। So B will be right answer for this one, ठीक है। So cost, insurance and freight आपका जैसे cost of good, insurance and freight. However, the risk transfer to buyer
once the goods are loaded onto the vessel at the port of shipment. ठीक है, तो वहां तक की जिम्मेदारी। अब देखो इनको टर्म्स होता क्या है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हम इनको बोलते हैं। इनको टर्म्स आर नोन एज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ठीक है, सो parties to a contract are often or not aware of different trade practices in their respective countries, which can cause misunderstanding resulting in unnecessary dispute. As such, ICC published a set of international rules for the interpretation of trade terms known as Incoterms. तो इन्होंने क्या बनाया ना, एक लिस्ट बनाया, एक डायग्राम बनाया कि इसमें आपका जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बायर, और ये आपका एडवाइजिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होंगी, आपका जो इशूइंग बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मतलब उन्होंने एक चार्ट बना दिया, चार्ट के हिसाब से आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे में काम करेंगे। द आईसीसी पब्लिकेशन ऑन इनकोटर्म्स हैज बीन अपडेटेड सेवरल टाइम, द लेटेस्ट वन वाज 2020 जो अभी भी चल रहा है। द फुल फॉर्म ऑफ इनकोटर्म इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। ठीक है, जैसे ये आपका, ठीक है, जैसे हमारा था आपका, जैसे डिपार्चर है, मेन कैरेज है, ठीक है आपका, देन मेन कैरेज अनपेड है, अराइवल है, ठीक है ये आपका। ठीक है, तो जैसे हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सो आपका नेम्ड अ पोर्ट डेस्टिनेशन सीआईएफ, जैसे आपका जेएनपीटी आपका, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आपका वहां पे, और सीआईएफ चेन्नई, इस तरीके से। ठीक है, सो इनको हम अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, the deal only with the relationship between seller and buyer. ठीक है, this is the one। ठीक है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था और ये काफी पिछली बार भी पूछे गए थे आपका। ठीक है, तो जिसमें आपका देखो अब यहाँ पे है कहाँ कहाँ पे किस किस के रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर द इनको टर्म्स। ठीक है, ये सारे इनको टर्म्स हमारे हैं। अब इनका जैसे ये आपका बायर साइड में कहाँ पे होगा, ठीक है, आपका सेलर कहाँ पे होगा, ये जैसे आपका है इनको टर्म्स EXW, आपका FAS, FCA, दिस। ठीक है, सो ऑब्लिगेशन एंड चार्जेस आपका जो दो तरीके से आपके रखे हैं। ठीक है, द फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट इनको टर्म इम्पोज मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बायर, एंड वेयरएज द लास्ट आपका राइट मोस्ट इनको टर्म्स प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेलर। ठीक है, तो ये आपका बायर, वो आपका सेलर। ठीक है, कौन कहाँ पे किस स्टेज पे आपका रहेगा। ठीक है, जैसे वेयर हाउस सर्विसेज, आपका एक्सपोर्ट पैकिंग, लोडिंग एट पोर्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, आपका दिस फ्रेट ओरिजिन चार्जेस, दिस आपका, ये कहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं सीआईएफ है आपका, या जैसे ये क्लियरिंग एंड अदर्स है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था, आई विल शो यू 2-3 क्वेश्चन मोर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और पढ़िए, आप सब समझ में आएगा। इन विच इनकोटर्म डज बायर अज्यूम दैट all risk and cost immediately after the seller make the goods available at seller premises। तो ये क्या होगा आपका EXW, ठीक है, X वर्क्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, EXW। ठीक है, सो बायर अज्यूम all risk and cost immediately after the seller make the goods available at seller premises। ठीक है, तो जैसे हमारा EXW आपका ये आपका पोर्शन है। ठीक है, सो जहां पे कुछ इस तरीके से जो हमारे बायर्स का लोडिंग एंड ऑल, जैसे ये आपका कस्टम ड्यूटीज, ये बायर, तो यहां से आपके इसके बाद सारे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज द वन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो अंडर द EXW X वर्क्स, द सेलर ओनली रिस्पॉन्सिबल इज टू मेक द गुड अवेलेबल एट देयर प्रीमाइसेस, ठीक है, फैक्ट्री एंड वेयरहाउसेस। The buyer must handle transportation, insurance, export, import, clearances and all. ठीक है, this term favor the seller as they have minimal obligations। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। Which Incoterm require the seller to deliver goods cleared for import to buyer's location including payment of duties and taxes। तो आपका हाँ, so ये क्या होगा आपका DDP, delivered duty paid। ठीक है, so it will be option A। ठीक है, delivered duty paid। ठीक है, the seller is responsible for all costs including transportation, insurance, import duties and taxes। Buyer only take charges after delivery at the specific location। जैसे हमारा आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका पोर्ट है या चेन्नई पोर्ट जो भी आप है, दिस टर्म मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेलर। तो इस तरीके से आपका ये जो इनको टर्म्स है
मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन पे रट्टाफिकेशन मारो, अभी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करो. जस्ट आई हैव गिवन यू द रेफरेंसेस and I'll create a set of question based on all the Incoterms also. I'll upload it on our mock test, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं आपको उनको डाल दूंगा. सो आप टेंशन मत लीजिएगा उसका. बट एग्जाम ड्यूरेशन में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे उससे पहले मैं आपको एक हैंडी नोट दे दूंगा, तो उसमें ये जरूर होंगे, ठीक है, जहाँ पे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं. और इतना ही याद रखना है, एग्जाम हॉल तक बाहर आने पर छोड़ देना है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज इट गाइस, सो दिस इज इट. This is all about your documentary credit, letter of credit. Okay, so I hope you enjoy the session. कैसा लगा जल्दी से एक बार comments के थ्रू लिख के बताइए. And if you have any doubt you can also connect me over there. ठीक है, so आप मुझे यहाँ पे connect कर सकते हैं, ठीक है. हाँ, so this is my telegram group guys, so you can join this particular group. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है. और अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उस हेल्प के लिए भी मुझे आपका कनेक्ट कर सकते हैं. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस केस स्टडीज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है. मोस्टली व्हाट विल डू, एक तो आपका जो मैकमिलन की केस स्टडीज हैं और उनके रेफरेंस में जो अदर क्वेश्चंस आपका बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो होप यू एंजॉय. नाउ आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम with case studies based on this LC document. Okay, so this is it guys. Bye bye, take care all, have a nice day, thank you.